Hey students, welcome to the channel. It's me, Ami. Upon the most popular demanding video, here is the request granted. Yes, Reliance Foundation Scholarship is a scholarship into which you need to give an aptitude test, and it's based upon certain aptitude topics like logical thinking, verbal, you have numerical, you have analytical, and इसी के preparation के लिए काफ़ी request आ रही है students की ओर से, and here I am with the pen ready to teach you out with the basics of the aptitude test you are going to face before you get your scholarship. And I make it very sure every year, since many years I am doing this, making you practice the aptitude, the one who are applying for the scholarship, I am making it very sure कि इतनी practice हो जाए कि you find yourself confident enough when you are actually sitting for the aptitude test. And believe me, trust me, the aptitude test is not so difficult. Okay, you can consider it to be of a average level but not of the difficulty level, and वो कब आपको feel होगा when you go ahead with much of the practice. Okay, so आज का जो video रहेगा would be on to solving the verbal ability part of the sample paper available on to Reliance Foundation Scholarship. ओके तो आज का जो सेशन रहेगा वर्बल एबिलिटी पे रहेगा, उसके बाद विल बी कवरिंग द अदर सेक्शंस ऑफ द सैम्पल पेपर, एंड उसके बाद जो रहेगा वुड बी इंडिविजुअली कवरिंग एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑन टू सेम टॉपिक्स. ओके, जैसे वर्बल एबिलिटी में यू हैव टॉपिक्स लाइक एंटोनिम्स, यू हैव एक्टिव पैसिव, यू हैव टॉपिक्स ऑन टू टेंसेस, स्पेलिंग एंड मच मोर. So we shall be practicing on to each of the topics, right? But first for all, we need to complete the sample paper solving, ताकि आपको idea लग जाए कि questions किस हिसाब के आएंगे, कौन से topics आएंगे, right? आपकी भी कोई suggestion हो on to preparation, you can absolutely comment. I'll be more than happy. Our team would be more than happy to prepare the set of questions as per your requirements. साथ ही मैं बताना चाहूँगी we have launched a course also this year, जहाँ पे इसकी practice on to much more regular basis मैं करवाती हूँ. The reason being, I need to be focused on to certain batch of students who are in belief of me of getting the scholarship. कहीं ना कहीं विश्वास लेके बैठे कि हाँ स्कॉलरशिप मिलेगी. ऐसे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स को मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाना चाहती थी, इसलिए करके मैंने कोर्स लॉन्च किया है. If you want to be a part of that course, the link is available in the description box below. And पिछले साल मैंने जो भी एप्टीट्यूड की पूरी सीरीज पढ़ाई है आपको, अगर वो भी वीडियो फॉर्म में अगर आपको देखनी है, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आप देख सकते हो. प्लेलिस्ट अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप अगर आपने अभी तक नहीं सुना, दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो यू आर लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप, तो उसका भी डिटेल वीडियो बन चुका है अपनी चैनल इट्स मी यामी पे. तो आप बिल्कुल ही 2025 के लिए डिटेल ऑफ रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप देख सकते हो, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द वर्बल एबिलिटी सेक्शन. हियर वी गो. सो दिस आई हैव टेकन इट फ्रॉम द सैम्पल पेपर, ओके, ताकि अपने को आइडिया लग जाए. नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर गोज इज ऑन टू द करेक्ट स्पेलिंग. So there should be a ramp in all the public spaces to overcome the dash to the wheelchair access. Okay, हम रैम्प क्यों बनाते हैं? ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, द वन हू आर फिजिकली हैंडीकैप, राइट? तो दिक्कत ना हो वाला वर्ड बैठता है हिंड्रेंस, बट यहाँ पे वर्ड आइडेंटिफाई नहीं करना, हमें स्पेलिंग को आइडेंटिफाई करना है. देखो, वर्बल एबिलिटी के कुछ सेट ऑफ टॉपिक्स ऐसे हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो भी देयर आर सम चांसेस कि आपको शायद ना आए. वन ऑफ दोज टॉपिक इज स्पेलिंग्स, क्योंकि स्पेलिंग्स वी नो इट्स इनटू लॉट्स ऑफ नंबर्स, राइट? बहुत से स्पेलिंग्स हैं. You can't touch each and every spellings before actually facing the aptitude test. Not practically possible by any human, right? So इस वाले टॉपिक में it's on luck. अगर आपके ध्यान में ऐसा कोई स्पेलिंग आया है और आपको पूरा भरोसा है कि हाँ चलो यही स्पेलिंग है, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन से भी आप देख सकते हो, बट ओनली इफ यू फाइंड योरसेल्फ कॉन्फिडेंट तभी आप अप्लाई करेक्ट करना, इसको टिक मार्क लगाना. अदरवाइज लीव द क्वेश्चन इफ यू आर डाउटफुल. देखो, इसमें और थोड़े से क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं कि कितना टाइम मिलेगा एंड ऑल ऑफ दैट. तो 60 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट्स हैं, नेगेटिव मार्किंग्स हैं. कैलकुलेटर आप यूज़ नहीं कर सकते. ओके, ये कॉमन से डाउट्स हैं जो मैं बताना चाहती हूँ. तो इसमें आ जाएगा हिंड्रेंस इज द राइट वर्ड विद दिस पर्टिकुलर स्पेलिंग. इफ यू प्रोनाउंस इट हिंड्रेंस, राइट, तो इट गोज विद दिस पर्टिकुलर स्पेलिंग. सो हियर वी गो विद द स्पेलिंग क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज, देखो ये एरर वाले भी आ सकते हैं. आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा लाइक दिस इज द सेंटेंस गिवन टू यू. ओके, इसमें कौन सा पोर्शन ऑफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग,
वो आपको बताना है। सेंटेंस क्या है? क्रिटिक्स एवरीवेयर हैज प्रेज्ड हर न्यू मॉडल, न्यू नॉवेल। ओके, द क्रिटिक्स एवरीवेयर हैज प्रेज्ड हर न्यू नॉवेल। नाउ क्रिटिक्स आर हु? द वन who passes the comments after any new launch. Okay, it can be a movie, it can be a novel, book, anything, right? तो critics की comments आती है. Now critics is not just one person, there are many people as a part of critics, right? So ये बहुत से लोग हैं, तो ये plural form हो जाता है. Once it is plural, आप has नहीं लगा सकते. It has to be have, right? Have होगा तभी आप सही बैठोगे। तो इसमें कौन सा पोर्शन गलत है? विद द एरर कौन सा पोर्शन है? तो दिस पोर्शन इज रॉन्ग, राइट? इसकी वजह से आंसर आ जाएगा बी। गॉट इट? इट शुड बी हैव प्रेज्ड। द क्रिटिक्स एवरीवेयर हैव प्रेज्ड हर न्यू नॉवेल। गॉट इट? नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ दिस इज अबाउट वर्ब। ही डैश मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स टू पावरफुल पोजिशंस विद इन गवर्नमेंट। अभी जब भी वर्ब की बात आएगी ना, मेक श्योर आप जो भी सेंटेंस है उसको आपकी अपनी कन्वीनियंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का ट्राई करो। तो वर्ब का जो है वो आइडिया थोड़ा बेहतर तरीके से मिल पाएगा आपको। लाइक इसमें कहना क्या चाहता है कि उसने अपने फ्रेंड्स को गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छी पावरफुल पोजीशन में पहुंचाया है। मतलब इट हैज़ बीन डन, द एक्टिविटी हैज़ बीन डन। ओके, उसने अपने फ्रेंड्स को काफ़ी अच्छी पावरफुल पोजीशंस पे पहुंचाया है। इट हैज़ बीन डन, राइट? इससे पता चलता है कि इट्स इनटू पास्ट टेंस। नाउ पास्ट टेंस में विच आर देयर? इट्स लाइक ही एलिवेटेड मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स टू पावरफुल, एक ही है, राइट? दिस इज प्रेजेंट, दिस इज कंटिन्यूअस। हैव बीन एलिवेटिंग तो आएगा ही नहीं, इन प्रोसेस तो है ही नहीं। ओके, तो ये आपको कब पता चलेगा कौन सी सिचुएशन में, कौन से टेंस में है? वंस यू ट्रांसलेट इट इन योर ओन मदर लैंग्वेज। इट कैन बी गुजराती, मराठी, बंगाली, जिसमें आप कन्वीनियंट बैठ रहे हो, राइट? ये आप कर सकते हो। दिस इज अ प्रो टिप फ्रॉम मी। फाइन। द नेक्स्ट थिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। माई अंकल bequeathed हिज प्रॉपर्टी डैश मी। ओके, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें से निकालना है। टू मी, इन मी, फॉर मी, विथ मी। ओके, नाउ bequeath इज व्हाट? आपकी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टीज ट्रांसफर की जाती है, आपको दी जाती है, लाइक आपके पापा के द्वारा, दादा के द्वारा, इज दिस। ओके, आफ्टर योर डेथ। तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मुझे दी। ओके, तो हिज प्रॉपर्टी टू मी, किसको दी? मुझे दी, टू मी। इन मी तो हो नहीं सकता, फॉर मी। देखो, आप एलिमिनेशन मेथड भी निकाल सकते हो इन क्वेश्चंस के लिए। सारे ऑप्शंस को डाल के देखो, द ओनली परफेक्ट फिट वुड बी टू मी, राइट? तो दिस इज वन ऑफ द थिंग। अगेन आपको इसका थोड़ा सा मीनिंग हल्का सा पता होना चाहिए ताकि आप ट्रांसलेशन अच्छे से कर पाओ। आइडेंटिफाई मीनिंग ऑफ द वर्ड। ओके, इसका मीनिंग क्या है? इवन इन द फेस ऑफ क्राइसिस आई अप्रिशिएट हर रिस्ट्रेन्ड बिहेवियर। रिस्ट्रेन्ड मतलब किसी चीज को कंट्रोल में रखना। ओके, सो दैट इज कंट्रोल्ड बिहेवियर। आप मीनिंग भी समझ सकते हो कि उसके क्राइसिस थे तभी उसने ज़्यादा पैनिक या वो नहीं किया, उसका कंट्रोल बिहेवियर था, रिस्ट्रेन बिहेवियर था, राइट? सो दैट विल गिव यू अ हिंट ऑफ द मीनिंग। चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ये क्वेश्चन तो एक आएगा ही आएगा। ओके, इट्स बिन 2 years आई विल बी ऑब्जर्विंग दिस। एक्टिव पैसिव एक क्वेश्चन तो आएगा ही। आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। अभी इसका करना है अपने को पैसिव। ओके, तो क्या हो सकता है? आई रिमेंबर आई वॉज टेकन टू म्यूजियम बाय माई सिस्टर। आई रिमेंबर बींग टेकन टू म्यूजियम बाय माई सिस्टर। देन वी हैव आई रिमेंबर बींग टेकन टू म्यूजियम to the museum by my sister. I remember taken to the museum by my sister. Okay, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ अपने को देखनी है? स्टार्टिंग ऑफ ऑल स्टेटमेंट्स इज आई। ओके, मेरी ही बात हो रही है। क्लियर? तो अगर मेरी ही बात हो रही है तो वापस से अपने को आई लगाने की जरूरत नहीं है, माई सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, आई रिमेंबर टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर, बीइंग टेकन। ओके, सो इट हैज टू बी इनटू कंटिन्यूअस टेंस। क्यों? टेकिंग है यहाँ पे, राइट? तो उसको भी कंटिन्यूअस में होना चाहिए, इसलिए द परफेक्ट फिट हियर इज द ऑप्शन बी। तो आप चारों में देखो क्या ठीक नहीं है, तो क्या वाला ठीक है वो आपको मिल जाएगा। दिस इज अ मेथड टू सॉल्व, राइट? सनी डैश स्लीपिंग व्हेन द हाउस डैश बगल्ड।
Okay, when the house bubbled. Okay, to be specific, burled. So now what is the meaning of burled? It means चोरी होना, घर में चोरी होना, राइट? सो ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है? जब सनी सो रहा था तब घर में चोरी हुई, राइट? तो हुई मतलब इट इज ऑल इनटू पास्ट टेंस एंड इट इज इनटू पास्ट टेंस, तो कौन सा ठीक बैठेगा? देखो दो ऑप्शन जो है ए और डी, उसी में से अपने को देखना है। यहाँ पे हैव बीन है, ओके, टाइपिंग शायद से मिस्टेक है, यहाँ पे हैव बीन है, तो दोनों ऑप्शन सेव हो जाते हैं। तो हियर वी गो विद द राइट ऑप्शन। सनी वाज स्लीपिंग व्हेन द हाउस हैड बीन बगल्ड। ओके, वो सो रहा था जब हाउस वाज बीइंग बगल्ड। फाइन, क्लियर है? एक बार मैं सो हैड बीन, सनी हैड बीन स्लीपिंग व्हेन द हाउस वाज बगल्ड, उल्टा हो जाएगा। वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने ऑप्शन गलत से देख लिया। सो हियर विथ सनी वॉज स्लीपिंग नहीं आएगा, हैड बीन स्लीपिंग। क्यों? क्योंकि दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस, ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी वजह से होगा क्या? हैड बीन लगेगा एंड आईएनजी इंडिकेट्स द कंटिन्यूअस टेंस। सो सनी हैड बीन स्लीपिंग व्हेन द हाउस वॉज बगल्ड, तो ये इंडिकेट करता है पास्ट, इसकी वजह से यहाँ पे वॉज आ जाएगा। तो बी ऑप्शन गोज राइट ओवर हियर। क्लियर? द नेक्स्ट इन द लिस्ट इज फॉर क्वेश्चन एन एनालॉगी स्टार्टेड फ्रॉम ऑप्शंस। ओके, यू नीड टू सिलेक्ट द सेम एनालॉगी, मतलब इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वही रिलेशन इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा रिलेशन बेस्ट सेट होता है इसके अकॉर्डिंग। सो एक्टर, थिएटर, actors are the one who perform in the theater, right? The theater is a compact place wherein the actors perform, right? So इसमें से कौन सा बेस्ट बैठेगा? तो if you look upon to the options, author book, engineer bridge, professor university, scientist discovery. Now this is a closed campus, right? And professors are the one performing there, teaching there, right? तो सेम एनालॉगी बैठती है दोनों की। सो दिस गोज राइट। सो चारों का आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा एंड देन यू विल रीच टू द राइट ऑप्शन। क्लियर? चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट पंचुएशन। ये भी इजी है, पंचुएशन का एक तो आएगा ही आएगा, उसमें आप एलिमिनेशन तो अच्छे से कर सकते हो, ये छोटा नहीं हो सकता, मतलब ये निकल जाएगा, इसमें फुल स्टॉप नहीं है ये निकल गया। अभी दिस बुक इज मैरीज फेवरेट बुक एंड दिस बुक इज मैरीज फेवरेट बुक, यहाँ पे कॉमा क्यों लगे? ना लगे, हाँ, तो ये वाला सही है। एलिमिनेशन विल वर्क आउट हियर। क्लियर? डैश बिफोर द टीम अराइव्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही बैठेगा? व्हेन दिस स्टेटमेंट इज गिवन टू यू। ओके, वी विल हैव सिक्योर्ड द स्टेडियम, we would have been securing the stadium, we would have secured the stadium, will have been securing the stadium। अभी बात क्या हो रही है? कोई कह रहा है एक दूसरे बंदे को, सपोज दो लोग मैच देखने को जा रहे हैं, राइट? तो वो कह रहा है कि हम टीम आए ना उससे पहले स्टेडियम में जाके अपनी सीट सिक्योर कर लेंगे, ये बात हो रही है, राइट? तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो दिस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लाइक जब भी आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लगाना रहेगा तब क्या होगा? वी नीड टू यूज विल हैव। ओके, सो दिस इज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वी विल हैव सिक्योर्ड द स्टेडियम, हम तब तक स्टेडियम में सीट ले लेंगे उस टीम आए उससे पहले, मतलब ऐसी बातें हो रही है फ्यूचर की, राइट? जो हम करने जा रहे हैं, तो दैट्स फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव। गॉट इट? क्लियर? Choose the correct pronoun for the underlying word. They must have a valid visa for they to travel to the United States of America. तो they तो आ ही नहीं सकता, it should be them, right? For them to travel, right? So this is the correct one. Use a prefix to form the antonym. Match का उल्टा करना है, opposite, तो होगा mismatch. Okay, it shouldn't be unmatch, dismatch नहीं हो सकता, it's mismatch, right? इस नाम की सीरीज भी है। Laura is usually dash than her sister Lizzie. अभी then है, comparison है, comparative है, तो then के साथ क्या आएगा? more, more than, right? तो more than, more cheerful than her sister, right? तो option C goes right over here. कुछ चीज़ें इंग्लिश में फिक्स्ड हैं तो उसी को आपको फॉलो करते हुए आंसर्स देने हैं।
नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म्स भी एक पूछे जाएंगे. AKA stands for what? Also known as aka. Also known as. This is a short form usually used. It dashed the whole of last week. मतलब ये क्या कह रहा है? पिछले वीक स्नोइंग ही हुई. ओके, तो पूरा पिछले वीक की बात हो रही है. द कंप्लीट लास्ट वीक क्या हुआ उसी की बात हो रही है, राइट? यहाँ पे तो इट हैड बीन स्नोइंग. दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? पिछले पूरे वीक स्नो आया, चल रहा था, स्नोइंग चल रहा था. ओके, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट हैड बीन स्नोइंग द होल ऑफ लास्ट वीक, राइट? पूरे वीक स्नोइंग चला. रीअरेंज द सेंटेंसेस. जिस तरीके से आप किस टॉपिक को डिस्क्राइब करते हो उस हिसाब से आपको इन सेंटेंसेस को अरेंज करना है. 4 सेंटेंसेस आपको दिए हैं. ये चारों सेंटेंसेस किस टॉपिक पे है? नॉन वायलेंस पे है, राइट? सो हम पहले जब भी किसी टॉपिक की बात करते हैं उसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट? सो इट्स नॉट अ क्वालिटी टू बी इवॉल्व्ड और एक्सप्रेस टू ऑर्डर, राइट? अपॉन इंटेंस इंडिविजुअल एफर्ट. ये एक सेंटेंस कुछ अलग ही कह रहा है, मतलब ये यहाँ पे नहीं आ सकता. इट इज एन इंडिविजुअल इनवर्ड ग्रोथ डिपेंडिंग फॉर सस्टेंस. ओके, ये पूरी नॉन वायलेंस की बात है. तो ये 3 स्टेटमेंट जो है वो कह रहे हैं अबाउट नॉन वायलेंस, जिसमें नॉन वायलेंस वर्ड को यूज करते हुए पहले एक स्टार्टिंग स्टेटमेंट को बनाया है. मतलब ए वाला स्टेटमेंट तो पहले ही आएगा, उसके बाद और एक्सप्रेस टू ऑर्डर इज नॉट अ क्वालिटी टू इवॉल्व और एक्सप्रेस टू ऑर्डर, दोनों कनेक्शन में है, राइट? तो बी आ जाएगा. फिर ये एक और क्वालिटी कह रहा है, इट इज एन इनवर्ड ग्रोथ डिपेंडिंग फॉर सस्टेंस. ओके, जो महात्मा गांधी जी ने अडॉप्ट किया था नॉन वायलेंस, उसी की बात हो रही है यहाँ पे, हिंसा के अगेंस्ट. ओके, सो दिस इज समथिंग. दूसरी क्वालिटी डी, राइट? एंड देन अपॉन इंटेंस इंडिविजुअल बिहेवियर. आएगा कैसे? अपने में नॉन वायलेंस यू नीड टू प्रैक्टिस इट, राइट? तब जाके आएगा. सो दैट्स ऑप्शन सी. तो हियर गोज ABDC, राइट? तो इस सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है. कुछ उल्टा पुल्टा दे रखा होगा आपको. देखो ये सैम्पल को पेपर में जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना, उसी के सिमिलर कैटेगरीज क्वेश्चंस होते हैं इन योर एक्चुअल पेपर. एज पर माई एक्सपीरियंस ऑफ 2 years आई एम टेलिंग यू. एक एंटोनिम का क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑपोजिट्स का, जैसे मैच मिसमैच था, राइट? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे सिमिलर, तो यू विल गेट अ क्लू ऑफ प्रिपेयरिंग. ओके, तो हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे. आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंग वर्ड. द हाउस इज कोजी इनफ. हम कोजी वर्ड काफ़ी बार यूज करते हैं इनटू जनरल टॉकिंग ऑल्सो. कोजी मीन्स कंफर्टेबल, राइट? कोजी का मतलब होता है कंफर्टेबल. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग. अगेन स्पेलिंग का यू कैन एक्सपेक्ट 2 questions कमिंग ऑन स्पेलिंग. सो टुमारो का ये रहता है जिसमें R 2 बार आता है, M और O तो एक ही बार आता है, राइट? सो दैट्स टुमारो. विच पार्ट इज एंटोनिम ऑफ टर्माइट? टर्मिनेट, सॉरी, टर्मिनेट. टर्मिनेट करना मतलब स्टॉप करना है, जैसे कि फ्लाइट्स को टर्मिनेट किया जाता है. ओके, किसी थिएटर में कोई शो होता है तो उसको टर्मिनेट मतलब सडनली स्टॉप करना. तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? स्टार्ट करना. स्टार्ट करना मतलब कमेंस करना. क्लियर? ये हो गया. उसके बाद रीड दिस. कन्वर्जेशन है, तो ये कन्वर्जेशन में नवीन का डायलॉग क्या होगा वो आपको बताना है ऑप्शन में से. स्मिता पूछ रही है, डू यू वांट मी टू ड्रॉप यू एट द ऑफिस टुडे? नवीन क्या कहेगा? बाद में स्मिता ऐसा कहेगी, इट्स अ प्लेजर. तो नवीन कहेगा आउट ऑफ दिस ऑप्शन दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल. तो वो बोलेगी नहीं, ये तो मेरा प्लेजर है, मेरी भी खुशी की बात है ये, राइट? सो इस तरीके का कन्वर्जेशन भी आ सकता है, जो आपको बीच वाला जो है वो समझना है कि कौन सा आ सकता है. Clear? So this is about the verbal ability. 20 questions. We'll be taking sessions on sessions now, because as we all know the last date is 4th of October for Reliance Foundation Scholarship, and आपकी जो aptitude test होगी वो 10th और 15th October के बीच में होगी. सभी को वो dates भी मिल गई होगी क्योंकि आप ही को slot select करने हैं aptitude के. तो do share it in the comment section. कब है आपका aptitude test? Let me also know, and we'll be bang on with the preparation, right? All the best for the preparation. Coming again with the many more videos onto the same really soon. Bye bye.